Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the remain portion that I have left in previous video lecture. That is, in previous video lecture, you have learned the concepts of photosynthetic pigments. The photosynthetic pigments may be chlorophyll A or chlorophyll B. This is all about matter of class 11th because the plant physiology is absent in class 12 and it is not in the lower section, that is in class 9 and in class 10th. So it is all about matter of class 11th and in higher classes. The students who are going to prepare themselves for the NEET, JIPMER, AIIMS and other competitive examination may take in help from this video lecture. In this video lecture, we will learn about the photosystem. In previous video lecture, you have learned the different kinds of photosynthetic pigments. So your heading is photosystem. Photosystem. What is system? Basically, if I have told you a concept regarding the system, then what is the special meaning that appeared in your brain, in your mind? System means when multiple things perform the similar kinds of function. For example, mouth, esophagus, stomach, intestine, the different organ perform the similar kinds of function, that is the digestion. They form the digestive system. The nostril, trachea, bronchus, alveoli, lungs, they form the they comes from the different organs and also they form the similar kinds of function, they perform the similar kinds of function that called the respiration, and that system is known as respiratory system. So when the different photosynthetic pigments involve to perform the similar function, there will be the photosystem. So first of all, you need to write the concepts of photosystem. Group of similar or different photosynthetic pigment, group of similar or different photosynthetic pigments in thylakoid membrane that used to absorb and transfer the light energy called photosystem. Groups of similar, the photosystem may be the similar kinds of photosynthetic pigments or different kinds of photosynthetic pigments. So suppose that this is the leaf, and in leaf you have learned the thylakoid, and there is a membrane found over the thylakoid. That membrane is known as thylakoid membrane. This is the thylakoid membrane. And what special things found in thylakoid membrane? The group of different photosynthetic pigments. This is one group. There may be another group. Similarly, the other group may have exist in the thylakoid membrane. बहुत सारे ग्रुप होते हैं कहाँ पे? thylakoid membrane. ये याद रखो. ये ग्रुप similar kinds of photosynthetic pigments हो सकते हैं या फिर different kinds of photosynthetic pigments होते हैं. photosynthetic pigments higher plants में जो main होता है ना, higher plants में, वो या तो chlorophyll A होता है या फिर chlorophyll B होता है. तो क्या हो सकता है? बेसिकली chlorophyll A या फिर एक ग्रुप chlorophyll B का होगा. ठीक है, दो ही तरह के पिगमेंट्स का ग्रुप होगा, या तो ये ग्रुप जो है क्लोरोफिल ए का हो या फिर इसमें ए और बी दोनों का हो. ठीक है, अकेले क्लोरोफिल बी का कोई ग्रुप नहीं होता है.
फोटोसिंथेटिक जो फोटो सिस्टम होता है ना, सिस्टम मींस बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये याद रखो। लेकिन प्लांट्स में एक अकेला कोई बी का कोई ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, क्लोरोफिल बी का कोई अकेला ग्रुप नहीं होता। तो ये सपोज दैट फर्स्ट टाइप ग्रुप है, इसमें ये क्लोरोफिल ए हो सकता है, ये भी क्लोरोफिल ए हो सकता है, ये भी क्लोरोफिल ए हो सकता है, मींस ये क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए। और दूसरा ग्रुप अगर पॉसिबल है तो क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी कि बी का कोई अकेले ग्रुप नहीं होता। यानी कि हम ये मान सकते हैं ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी कि ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी, ठीक है, ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी। यानी कि इस ग्रुप में हम बात करें, द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप की मैं बात करूं तो उसमें क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है, और इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए ओनली। In this way we can say that in plants only two types of photosystems are found, the photosystem first type and photosystem second type. Group of chlorophyll A form photosystem first, so this form the photosystem first and it was discovered first, so called photosystem first, and in short it is known as PS first. Listen, PS first. And in this way, in other kinds of the group in which both chlorophyll A and B exist called photosystem second. So we can say that there are two types of photosystem found in plants, the photosystem first and photosystem second. Keep in mind, the photosystem first and photosystem second having the composition of their photosynthetic pigments. The composition is, in photosystem first only chlorophyll A exists, all the photosynthetic pigments are chlorophyll A, and in photosystem second some of the photosynthetic pigments are chlorophyll A, some of the photosynthetic pigments are chlorophyll B. This should be written by you, this should be mentioned by you in your copy. So let us talk about the difference between photosystem first and photosystem second. Your heading is the difference between photosystem first and photosystem second. Listen, you must have to write the difference between photosystem first and photosystem second. Listen, आप अपनी कॉपी में ऐसे टेबल बना लीजिए, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड लिखने के बाद टेबल बना लीजिए, डिफरेंट बिटवीन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, और उस टेबल में एक एक पॉइंट भर दीजिए कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे मैं अगला एक लिखा दे रहा है आपको, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। अब दोनों को एक एक करके मैं डिफिनीशन और डिफरेंट बता दूंगा। लिसन, ओनली क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व, अभी जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। ओनली क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व, और इसमें ओनली क्लोरोफिल, ओनली तो लगाए नहीं, लिखेंगे बोथ, बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन्वॉल्व, ठीक है। पूरी बातें लिख देना, CHL शॉर्ट में मैंने लिखा, ठीक है। दूसरी चीजें, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये फर्स्ट और सेकंड क्यों बोलते हैं। जैसे किसी के गांव में या घर में कोई बड़ा लड़का तो बोलते हैं, बड़ा लड़का का नाम घनश्याम है और छोटा लड़का का नाम जो है रहीम है, तो क्या बोलेंगे, बड़ा लड़का छोटा लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फोटोसिस्टम फर्स्ट की डिस्कवरी हुई, इस वजह से इसको फोटोसिस्टम फर्स्ट, और दूसरे बाद में इसकी डिस्कवरी, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड। यानी कि क्या लिखेंगे, डिस्कवर्ड फर्स्ट, और इसको लिखेंगे डिस्कवर्ड लेटर। बाद में कौन डिस्कवर हुआ था, फोटोसिस्टम सेकंड, और पहले कौन डिस्कवर हुआ था, फोटोसिस्टम फर्स्ट। इसी वजह से इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। ये बातें दिमाग में रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, इट एब्जॉर्ब
700 nm wavelength of light, so called P700। ये 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। कौन? फोटो सिस्टम फर्स्ट। इस वजह से इसको बोलते हैं P700। और ये 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड 680 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए बने होते हैं। इसको बोलते हैं P680। ठीक है, कार्ड P680। P700 किसको बोलते हैं? फोटो सिस्टम फर्स्ट को। और P680 किसको बोलते हैं? फोटो सिस्टम सेकेंड को। दिमाग में रखिए, आप लोग एक एक चीजें दिमाग में रखिए और नोट करते जाइए। लिसन, रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए। अब नया सवाल आ गया, नया बखेड़ा खड़ा हो गया कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है। रीजन क्या है? रिएक्शन सेंटर पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फोटो सिस्टम है, पिगमेंट्स ये ढेर सारे इन्वॉल्व है, ये ढेर सारे पिगमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ढेर सारे पिगमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। और ये क्या बना रहे हैं? फोटो सिस्टम बना रहे हैं। ये दिमाग में रखिए, ये क्या बना रहा है? फोटो सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो इसमें से जब सनलाइट इस पे एक्सपोज होगी ना, जब सनलाइट इस पे एक्सपोज होगी, किस पे? इस फोटो सिस्टम पे, तो कोई ना कोई फ्रंट पे जाके पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा, सब इकट्ठे नहीं जाएंगे। अब क्रिकेट होता है तो सबसे पहले ओपनर आते हैं। ऐसा नहीं कि 11 खिलाड़ी आते हैं उसमें से 11 इधर दौड़ते हैं, 11 ऐसा नहीं। 11 खिलाड़ी, 11 प्लेयर जो है नहीं आते। एक बैटिंग करता ओपनर में भी, एक पहले स्ट्राइक पे होता है। तो जो फ्रंट पे होता है, यहाँ पे देखो, इसमें जो फ्रंट पे होता है, जो पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसको बोलेंगे हम लोग रिएक्शन सेंटर। तो जब क्लोरोफिल, जब हम फोटो सिस्टम फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट में सब के सब जब क्लोरोफिल ए है, तो पहला जाए तो भी क्लोरोफिल ही होगा, दूसरा जाए तो भी, आगे रहेगा वो भी क्लोरोफिल ही होगा, और पीछे रहेगा वो भी क्लोरोफिल होगा। जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सुनो, मान लो कि ये आदमी इंडिया का है। ठीक है, ये ग्रुप है, इसमें ये इंडियन है, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, ये सब इंडियन है। तो कोई एक आदमी आगे आ गया, वो अफ्रीका का थोड़ा होगा, इंडिया का होगा। भैंस की झुंड है, एक जानवर निकल के भाग गया, कौन सा जानवर होगा? गधा होगा, हाथी होगा, बिल्ली होगा, भैंस होगा। तो ये क्लोरोफिल का झुंड है, उसमें से एक आदमी आगे आ गया, एक जो क्लोरोफिल आगे आ गया, जो फ्रंट पे आकर के क्या रोक रहा है? सनलाइट की इंटेंसिटी को, और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके बाकी में ट्रांसफर करे, वो क्लोरोफिल होगा। तो रिएक्शन सेंटर आर द फर्स्ट क्लोरोफिल that involve in the light reaction, that absorb and transfer the light energy is known as reaction center। आगे हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, उसमें इसको एंटीना भी बोलते हैं। तो इसमें एंटीना यानी रिएक्शन सेंटर का काम कौन करता है? क्लोरोफिल ए। अनफॉर्चुनेटली फोटो सिस्टम सेकेंड में भी एंटीना यानी रिएक्शन सेंटर का काम क्लोरोफिल ए ही करता है। होते तो दोनों है, लेकिन इन्वॉल्व कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो इसमें भी लिख लो कॉपी में, क्लोरोफिल ए आल्सो फॉर रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें क्या रीजन है भाई, क्या लॉजिक है? इसमें तो क्लोरोफिल बी भी है। इससे पहले लास्ट वीडियो में जब जाएंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्लोरोफिल ए 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और क्लोरोफिल बी 680 को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज दैट ये दो बच्चे हैं। ठीक है, ये दो बच्चे हैं। ठीक, इसके पास 10 लोगों से लड़ने की कैपेसिटी है। ये बच्चा नंबर 1 है और ये बच्चा नंबर 2 है, दोनों भाई हैं। इसके पास 10 आदमी से लड़ने की कैपेसिटी है। इसके पास सिर्फ 5 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। बी के पास 5 से ज्यादा लड़ने की कैपेसिटी नहीं, उससे ज्यादा वो लड़ ही नहीं सकता। कभी 6 आदमी से नहीं लड़ा है, 5 में भी स्थिति इसकी गंभीर हो जाती है। सामने एक और आदमी आ रहा है सी,
इसका कद काठी देख के रेंज लगाया, दोनों लोग रेंज लगाए कि इस आदमी के पास एक आदमी से भी लड़ने की कैपेसिटी हो सकती है 10 आदमी से भी, यानी इसके पास रेंज कितना है 1 to 10। क्लियर नहीं है अभी, दोनों को क्लियर नहीं कि ये आदमी जो दिख रहा है ये 10 आदमी की कैपेसिटी लड़ने की या एक आदमी की कैपेसिटी है, लेकिन ये क्लियर है कि ये एक आदमी का भी हो सकता है 10 आदमी का। अब सपोज दैट 1 से 5 तक की कैपेसिटी निकल गई तो 5 वाला लड़ लेगा, और उसके ऊपर की निकली तो 5 वाले की स्थिति खराब हो जाएगी। तो कौन लड़ेगा इससे जाके, 10 वाला ए लड़ेगा कि बी लड़ेगा? क्लियर है कि ए लड़ेगा। रीजन क्या है कि अगर इसके पास एक आदमी की कैपेसिटी रही तो भी जो ए है वो लड़ लेगा। भाई जो आदमी 10 आदमी से लड़ लेगा वो एक आदमी वाला से नहीं लड़ पाएगा, लड़ लेगा। 10 का निकला तो भी टक्कर दे देगा, लड़ जाएगा। लेकिन अगर बी की मैं बात करूं, बी जाएगा लड़ने तो 1 से 5 तक की कैपेसिटी है तब तो इसके रेंज में है, लेकिन अगर इसके पास 6 का पावर निकल गया तो क्या होगा? हालत खराब, बी की हालत खराब हो जाएगी। तो इस वजह से बी और ए में से ए लड़ने जाएगा। सिमिलरली अगर ये ग्रुप है, इसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ठीक है, और बाहर से सनलाइट की इंटेंसिटी फॉल हो रही है, तो इस सनलाइट में मैंने बताया कि 700 nm वेवलेंथ होता है और 680 भी होता है। 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है और 680 भी होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन फ्रंट पे जाके एब्जॉर्ब करेगा? बी एब्जॉर्ब करेगा कि ए? सिमिलरली वही बातें हैं कि ए जो है दोनों लाइट इंटेंसिटी को कवर कर लेगा। ये तो 700 के लिए बना ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आ गया फोटो सिस्टम सेकंड में, जिसमें सब के सब जो है 680 पे ही बने हैं। क्लोरोफिल भी सब का सब 680 तो सीख गया 680 पे, लेकिन अगर 700 इंटेंसिटी का निकल गया तो इसके लिए भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, तो जानता ही है 700, कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर बी फ्रंट पे जाएगा और आने वाली इंटेंसिटी 680 की ना होकर के 700 की निकल गई तो ये क्रश हो जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस वजह से फोटो सिस्टम सेकंड में भी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है और इसमें भी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है। क्लियर है ना? ये 3-4 पॉइंट। 5वां पॉइंट देखो, डिस्कवर फर्स्ट तो हुआ है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में, फोटो केमिकल रिएक्शन में ये बाद में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिए, इट इन्वॉल्व लेटर इन केमिकल रिएक्शन, इन्वॉल्व लेटर इन फोटो केमिकल रिएक्शन। पीसीआर तो लिखना ही नहीं, पीसीआर मींस 12 में है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सिर्फ यही लिखेंगे कि फोटो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन होता है। फोटो केमिकल रिएक्शन में पहले इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम, पहले इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम सेकेंड, और बाद में इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट फोटो सिस्टम इन्वॉल्व इन फोटो केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट है तो पहले नहीं, फर्स्ट है तो डिस्कवर फर्स्ट हुआ है, लेकिन इन्वॉल्व बाद में होता है। ये बातें लिख लीजिए पक्की, इसमें लिख लीजिए इट इन्वॉल्व फर्स्ट इन फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो सिस्टम सेकंड जो है फोटो केमिकल रिएक्शन में पहले इन्वॉल्व होता है। लिखेंगे कॉपी में फिफ्थ में, इन्वॉल्व फर्स्ट इन फोटो केमिकल रिएक्शन, और ये बाद में इन्वॉल्व होते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन में। ये बातें आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटो सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द light harvesting complex. That should be your homework, that should be your next heading. Thank you.